میں شکر گزار ہوں کہ خداوند نے اس تحریک کے تحت بائبل اسکول کا اہتمام کیا، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ مسیح کے بہت سارے شاگرد بن کر اٹھیں اور وہ قوموں کو جا کر شاگرد بنائیں۔ افسیوں کے خط کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور آج افسیوں 2 باب اور اس کی 11ویں آیت سے لے کر 22 تک، باب کے آخر تک ہم خدا کے زندگی بخش کلام کو سیکھیں گے۔ ان 11 آیات میں ہمیں جو موضوع نظر آتا ہے، 11 آیت کا جو مجموعہ ہے، اس میں جو عنوان ہے دا گریٹ پیس مشن، باہمی میل ملاپ کا عظیم مشن، صلح اور اتحاد کا ایک عظیم مشن۔ تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا میں جنگ و جدل روکنے کے لیے بڑے بڑے قائدین نے کوشش کی، یعنی وہ پیس مشن لے کر ایک ملک سے دوسرے ملک میں گئے۔ اور میں اس کی مثال دے سکتا ہوں کہ پہلی جنگ عظیم کو روکنے کے لیے برٹش پرائم منسٹر میلون چمبرلین 1938 میں سپٹمبر کے مہینے میں وہ جرمنی گیا کہ ہٹلر کو اس بات کے لیے آمادہ کرے کہ یہ جنگ عظیم رک جائے، لیکن وہ اس مشن میں ناکام رہا۔ لیکن آج خدا ان کے پیارے لوگوں جو اس کے نام کے کہلاتے ہو، اس کے پیروکار ہو، میرا اور آپ کا محبوب خداوند جو قوموں کی نجات بن کر اس دنیا میں آیا، منجی عالمین، اس مشن کو آج پالوس رسول افسس کی کلیسیا کو ان الفاظ میں یاد کراتے ہیں 11ویں آیت میں، پس یاد کرو کہ تم جو جسم کی روح سے غیر قوم والے ہو، اور وہ لوگ جو جسم میں ہاتھ کیے ہوئے ختنہ کے سبب سے مختون کہلاتے ہیں، تم کو نامختون کہتے ہیں۔ اس 11ویں آیت میں بہت بڑے 2 گروہ یا گروپ نظر آتے ہیں۔ مختون وہ جن کا ختنہ ہوا اور وہ ابراہیم کے خدا کے عہد میں شامل تھے، اور غیر اقوام جنہیں بڑی حقارت سے یہودی قوم نامختون کہتی تھی۔ لیکن پالوس جو غیر قوموں کا رسول ہے، اور بالخصوص افسس کی کلیسیا، افسس کے لوگ جو دیوی ڈیانا کو ماننے والے تھے، اس دیوی کو پالوس مسیح کے ساتھ اس یگانگی کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، پس یاد کرو کہ تم جو جسم کی روح سے غیر قوم والے ہو، خدا نے کیسا بڑا فضل آپ پر کیا۔ اس لیے میں نے کہا کہ افسیوں 2 باب جو ہے، یہ اس پیس مشن کا بیان کرتا ہے۔
آج ان 11 آیات کو میں 3 پوائنٹس کے ذریعہ سے آپ پر واضح کرنا چاہوں گا کہ ان 11 آیات میں وہ 3 پوائنٹس جو ہیں انہیں بیان کیا گیا ہے۔ 11ویں اور 12ویں آیت میں ورڈ ہمیں پہلا ملتا ہے سیپریشن، دوسرا پوائنٹ ہے ریکنسیلیشن۔ پہلا جو ہے وہ مسیح سے جدائی یا علیحدگی، اور دوسرا پوائنٹ جو ہے کہ مسیح کے ساتھ ریکنسیلیشن، یعنی وہ ملاپ جو ہے، وہ صلح جو ہے۔ اور تیسرا ہے یونیفیکیشن، جس کے معنی ہے کہ کس طرح خدا نے یہودی قوم کو جو مختون تھے اور غیر قومیں جو نامختون تھی، کیسے ان دونوں کو ملا کر یونیفائی کر کے اس اتحاد میں کیسے انہیں متحد کر دیا، باندھ دیا۔ تو آئیے پہلے ہم 11ویں اور 12ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ پس یاد کرو کہ تم جو جسم کی روح سے غیر قوم والے ہو، اور وہ لوگ جو جسم میں ہاتھ سے کیے ہوئے ختنہ کے سبب سے مختون کہلاتے ہیں، تم کو نامختون کہتے ہیں۔ 12ویں آیت، اگلے زمانہ میں مسیح سے جدا اور اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدہ کے عہدوں سے ناواقف اور نا امید اور دنیا میں خدا سے جدا تھے۔ اس لیے میں نے کہا یہ پہلا پوائنٹ جو ہے خدا سے جدا، یہ سیپریشن جو تھی، یہ علیحدگی۔ پہلی 10 آیات میں پالوس گنہگار انسان کی نجات کے متعلق بیان کرتے ہیں۔ ان آیات میں بالخصوص غیر اقوام کے متعلق بیان کرتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ افسس کے لوگ جو تھے ان میں اکثریت یا بیشتر وہ تھے جو غیر اقوام سے آئے تھے۔ اب جب آپ رومیوں کا خط پڑھے تو اس میں پالوس نے ختنے کا ذکر بڑا واضح طور پر کیا ہے۔ صدیوں سے یہودی جو مختون کہلاتے تھے غیر اقوام کو حقیر جانتے تھے اور انہیں نامختون جان کر ناچیز سمجھتے تھے۔ رومیو 2 باب اور اس کی 25 سے 29ویں آیت تک یہ خاص غور طلب آیات ہے۔ پالوس ان یہودیوں کو جو بڑے راسخ العقیدہ آرتھوڈاکس تھے، یوں مخاطب ہو کر کہتے ہیں ختنہ سے فائدہ تو ہے بشرطے کہ تو شریعت پر عمل کرے۔ 26ویں آیت، پس اگر نامختون شخص شریعت کے حکموں پر عمل کرے تو کیا اس کی نامختونی ختنہ کے برابر نہ گنی جائے گی؟ اب شریعت جو تھی خدا کا کلام تھا، وہ جو دیا گیا، وہ شخص جس کا ختنہ نہیں ہوا اگر وہ کلام کو مانتا ہے تو کیا اس کی نامختونی ختنہ کے برابر نہ گنی جائے گی؟ 28ویں آیت، کیونکہ وہ یہودی نہیں جو ظاہر کا ہے اور نہ وہ ختنہ ہے جو ظاہری اور جسمانی ہے۔ ورس 29، بلکہ یہودی وہی ہے
جو باطن میں ہے اور ختنہ وہی ہے جو دل کا اور روحانی ہے نہ کہ لفظی. اس کی تعریف آدمیوں کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے. ان لوگوں کو گویا پالوس جسے خدا نے روحانی علم ایسے دے رکھا تھا اور وہ دلیل کے ساتھ ان باتوں کو بیان کرتے. گلتیوں کی کلیسیا جس میں خاص طور پر شریعت کے ماننے والے استاد جو تھے وہ آ کر بار بار ان لوگوں کو شریعت کی باتوں کی طرف واپس لے کے جاتے تھے. بائبل کے طالب علم ہوتے ہوئے آپ کو پتا ہوگا, بائبل سکول کے طالب علموں کو پتا ہونا چاہیے گلتیوں کے خط میں کیوں پالوس کہتا ہے آئے نادان گلتیوں کس نے تم پر افسون کر لیا. افسون کیا تھا؟ ایسا جادو کہ پھر شریعت کی باتوں پر تم راغب ہو گے. اور گلتیوں 5:6 میں کہا اور مسیح یسو میں نہ تو ختنہ کچھ کام کا ہے نہ نامختونی مگر ایمان جو محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے. آپ کو یاد ہوگا اعمال 15 باب میں پہلی آیت میں ہی کچھ بھائی یہودیہ سے آ کر وہ یہ تعلیم دینے لگے کہ اگر موسیٰ کی شریعت کے مطابق تمہارا ختنہ نہ ہو تو تم نجات نہیں پا سکتے. جب نجات خدا کا فضل, خدا کے فضل سے نجات ملتی ہے, ختنے سے نہیں. گلتیوں 6 باب کی 15 آیت میں لکھا ہے کیونکہ نہ ختنہ کچھ چیز ہے نہ نامختونی بلکہ نئے سرے سے مخلوق ہونا. یہاں پر وضاحت کر دی پالوس نے, بڑی کلیرٹی دے دی مختونوں کو بھی نہ مختونوں کو بھی, کیونکہ نہ ختنہ کچھ چیز ہے نہ نامختونی بلکہ نئے سرے سے مخلوق ہونا. نئے سرے سے مخلوق ہونا جس کا مطلب دوسرا کرنتھیوں 5:17 کے مطابق اگر کوئی مسیح یسو میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے, چاہے وہ یہودی ہے چاہے وہ غیر یہودی. کلسیوں 2:11 میں لکھا ہے اسی میں تمہارا ایسا ختنہ ہوا جو ہاتھ سے نہیں ہوتا, یعنی مسیح کا ختنہ جس سے جسمانی بدن اتارا جاتا ہے. جب خدا نے ابراہیم کو بلایا تو اس کی نسل کو یہودی ہونے کا حق ملا. دیگر قومیں جو غیر قومیں تھی وہ ختنہ کے بغیر اس عہد میں وہ شامل نہیں تھی. اب خدا نے انہیں اس مکاشفہ کو ظاہر کرنے کا وسیلہ بنایا, یعنی مسیح خداوند جو یہودی قوم کے وسیلہ سے اس دنیا میں پیدا ہوئے. اب پالوس اس سٹیٹس کو اس طرح سے بیان کرتے, جب ہم 12ویں آیت میں پڑھتے ہیں کہ غیر قوموں سے یہ کہتے ہیں, 11ویں میں الفاظ یہی ہے بس یاد کرو. کیا یاد کرے؟ 12ویں آیت اگلے زمانہ میں مسیح سے جدا, اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدہ کے عہدوں سے ناواقف, نا امید اور دنیا میں خدا سے جدا تھے. گویا پالوس یہ کہہ رہے ہیں آئے غیر قوم والو, یہ کیسا بڑا فضل خدا کا تم پر ہوا. اور آج میں پاسٹر اسد یہ کہوں گا یہ فضل نہ ہوتا تو آپ اور میں جو غیر قوم والے تھے کبھی بھی اس میراث میں شامل نہ ہو سکتے.
बस याद करो। और 12वीं आयत में कहा अगले जमाना में मसीह से जुदा। अब ये बात क्या थी? विदाउट क्राइस्ट, मसीह से जुदा। असल में इफसस के लोग जो गैर अक़वाम के थे, देवी डियाना की परस्तिश करते थे, जब उनके पास ये खुशखबरी पहुंची कि वो जो बुत परस्ती में जिंदगी गुजारते थे, दूसरी बात बताई गई इस्राइल की सल्तनत से खारिज, हम विदाउट सिटीजनशिप, ये ऐसे ही है कि ये एक स्टेटस है। जो लोग अमेरिका में आए, चाहे वो माइग्रेट करके या उनको रिलीजियस सैलम के तहत आना पड़ा, तो जब वो आए तो पहले उनको एक नंबर अलॉट होता है, ए नंबर, यानी एलियन। एलियन का मतलब है कि वो इस मुल्क के बाशिंदे नहीं। लेकिन जब वो सिटीजन बन जाते हैं तो उन्हें पासपोर्ट भी अमेरिकन मिलता है, चाहे वो पाकिस्तान, हिंदुस्तान या दुनिया के किसी मुल्क में पैदा हुए। वो अमेरिकन सिटीजन हो गए या कैनेडियन सिटीजन हुए या ब्रिटिश सिटीजन। लेकिन ये शहरियत या सिटीजनशिप उस वक्त मिली। तो ये कह रहे हैं कि खुदा ने यहूदियों को बुलाकर एक कौम बनाया था। वो कौम जो थी, ये जो सिटीजनशिप उनकी थी, अब वो बरकत भी उन्हें उसी तरह से मिली, जबकि गैर अक़वाम को ऐसा हक नहीं मिला था। इसीलिए जब लोग नए नए इन ममालिक में आते हैं तो वो लोग जिनको ये स्टेटस मिल गया होता है, वो पूछते हैं कि आपका स्टेटस क्या है। अब मैं आपसे ये कहूंगा, मसीह खुदावंद में आपकी शहरियत, आप आसमानपुरी हो, ये स्टेटस मिल गया है कि आपने आसमानों पर जाना है। ये शरीयत तो यहीं पे रह जाएगी, चाहे अमेरिकन पासपोर्ट है आपके पास या कोई पासपोर्ट भी है जो उस सल्तनत का, उस हुकूमत का है। तीसरी बात इस 12वीं आयत में कहा, वादा के अहदों से नावाकिफ, विदाउट कॉवेनेंट। खुदा ने इब्राहिम से जो अहद किया था, पैदाइश की किताब के 12वें बाब की पहली 3 आयत, और उनमें जब खुदा ने बुलाया तो दूसरी आयत में ये कहा, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा। तीसरी आयत में कहा, जो तुझे मुबारक हैं उनको मैं बरकत दूंगा। खुदा ने गैर अक़वाम के साथ कोई अहद नहीं किया था, लेकिन इब्राहिम उस अहदी खुदा के साथ, गॉड ऑफ कॉवेनेंट के साथ, उस अहद में शामिल हुए। गैर अक़वाम की हैसियत एक अजनबी की थी, जैसे मैंने कहा एलियन की। तो यहूदी बड़े फख्र से यूं दुआ करते थे कि आए खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि मैं यहूदी हूं और गैर कौम नहीं। खुदा के लोगों, आज जब मैं और आप खुदा का शुक्र करते हैं तो हम ये कहते हैं कि आए खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूं, मैं जो गुनहगार था, अब मसीह यीशु को कबूल करने के सबब से
मैं तेरा फर्जंद हूं। मैं खुदावंद आज उस कलीसिया का रुकन हूं जिसे तू लेने के लिए आ रहा है। चौथी बात कही 12वीं आयत में, नाउमीद। जब आप बाइबल के तालिब इल्म होते हुए जरूर हर एक आयत को पढ़ो। ये ऐसे ही है कि जैसे ब्रेड के स्लाइस होते हैं। ये जिंदगी की रोटी जो है, एक एक आयत में स्लाइस है। आज मैं इस 12वीं आयत में पहला स्लाइस जो है वो है मसीह से जुदा, इसराइल की सल्तनत से खारिज, वादा के अहदों से नावाकिफ और नाउमीद। चौथी बात, नाउमीद, विदाउट होप। तारीख दान बताते हैं कि कदीम दुनिया के लोग मायूसी और नाउमीदी का शिकार थे। उनके फलसफे में खालीपन था, एम्प्टीनेस थी। और ये रवायत हमें बताती है कि मजहबी रसूमात बेबुनियाद सी थी। और इस बात को हम थेसलोनिकियों के खत में बड़ा वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। पहला थेसलोनिकियों जिसके 4 बाब और उसकी 13 से 18 आयत। शायद मैं सारी आयत ना पढ़ूं, लेकिन आप जरूर देखिए। जब बहुत सी बात हो रही थी तो पौलुस इन अल्फाज को बयान करते हैं, ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, ताकि औरों की मानिद जो ना उम्मीद हैं गम ना करो। अब औरों की मानिद जो ना उम्मीद है, और कौन थे? गैर कौमें जिनके पास कोई उम्मीद ना थी। लेकिन मेरे और आपके पास आज ब्लेसेड होप, वो जिंदा उम्मीद है। और उम्मीद क्या है? कि मेरा और आपका मसीह हुआ, लेकिन वो मरा ही नहीं रहा, बल्कि तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अब जब वो अपने लोगों को लेने के लिए आ रहा है, तो पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, और हम जो बाकी होंगे बदल जाएंगे, ताकि हवा में उड़कर उसका इस्तेमाल करें। और इस तरह हमेशा हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। खुदा के लोगों, आज जिंदा लोगों के लिए, मसीह लोगों के लिए ये ब्लेसेड होप है, ये उम्मीद है। बेशक वो मरेंगे तो सही, लेकिन वो मरे ही नहीं रहेंगे, बल्कि जी उठेंगे। और यहां पर 5वीं बात जो बताई, विदाउट गॉड, खुदा से जुदा। मुल्हिद यानी दहरिये, बेखुदा लोग देवी देवताओं को मानने वाले थे। और आपको याद होगा कि पौलुस एमाल की किताब के 17 बाब की 16 से 23 आयत तक जब आप पढ़ते हैं, तो पौलुस इसी इफिसस में जो अथीने शहर था, जब उसमें आए, तो पौलुस क्या कहते हैं? जब पौलुस अथीने में आया, तो शहर को बुतों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। बुतों से। जब मैं फर्स्ट टाइम एज ए टूरिस्ट हिंदुस्तान गया, तो मैं हैरान हुआ, इतने बुत, और इन स्टेचूज के आगे, बुतों के आगे फ्रूट रखा हुआ है। लोग भूखों मर रहे हैं। उन दिनों में गणपति का मेला था, और लोग कितना सारा अनाज दरिया में फेंक रहे थे। और मैं और मेरी बीवी, हम दुख से भर के कह रहे थे, आए खुदा, इनकी आंखों को खोल दे। और फिर उस दिन खुदा के पाक रूह ने मुझे याद दिलाया कि पौलुस का क्या हाल होगा जब वो अथीने में आया। क्योंकि बतौर टूरिस्ट हमें बहुत सारे ऐसे मंदिरों के पास ले गए। हमने किसी बुत को सजदा तो नहीं किया, हम तो अपने दिल में गैर जुबानें बोल कर ये कह रहे थे, आए खुदा, इस बुत परस्ती से
लोगों को आजाद कर दे। किस तरह से ये है? तो वो कहने लगे 22वीं आयत में, हाय अथीने वालों, मैं देखता हूं तुम हर एक बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। किसी ने कहा उन दिनों अथीने यूनान में आदमियों से ज्यादा देवता थे। पौलुस पहला कुरिन्थियों 8 बाब की 5 से 5वीं और 6ठी आयत में कहते हैं, अगरचे आसमान और जमीन में बहुत से खुदा कहलाते हैं, चुनाचे बुतेरे खुदा और बुतेरे खुदावंद हैं। 6ठी आयत, लेकिन सुनिए, लेकिन हमारे नजदीक तो एक ही खुदा है, यानी बाप जिसकी तरफ से सब चीजें हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही खुदावंद है यानी यीशु मसीह, जिसके वसीला से सब चीजें मौजूद हुई और हम भी उसी के हैं। खुदा के लोगों, इंसानी तारीख का बड़ा अलमिया है कि आज लोग जिंदा हकीकी खुदा को जानने की बजाय वो झूठे खुदाओं और देवताओं के पैरोकार हैं। पैदाइश की किताब के 11वें अध्याय में, या मुझे यूं कहना चाहिए कि पैदाइश 11 अब्वाब जो है, हम देखते हैं कि किस तरह से लोग बुत परस्ती में, लेकिन 12वें बाब में खुदा ने इब्राहिम को हालेलुया बुलाया और वो हुक्म मानकर, खुदा का हुक्म मानकर अपने नातेदारों में से निकला, और इस इब्राहिम को खुदा ने ईमान के सबब से फिर रास्तबाज ठहराया। और आज हम देखते हैं कि खुदा ने एक कौम को इब्राहिम की नस्ल से लाया, और जिसमें से हमारा खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए। यूहन्ना की इंजील के 4 बाब में 22वीं आयत में लिखा है, तुम जिसे नहीं जानते उसकी परस्तिश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी परस्तिश करते हैं, क्योंकि निजात यहूदियों में से है। जैसे मैंने कहा, मेरा और आपका निजात दहिंदा, ये वो आयत थी कि निजात यहूदियों में से है और खुदावंद उसमें से आए। अब 13 से लेकर 18 आयत तक हम दूसरा पॉइंट जो देखते हैं वो रिकंसिलिएशन है। गैर अक़वाम के लिए ये खुदा का काम था। इफिसियों 2 बाब की 4 आयत में लिखा है, मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से उस बड़ी मोहब्बत के वसीला से जो उसने हमसे की, अब यहां पर गोया खुदा ने बड़े रहम के तुफैल मुझे और आपको जीत लिया। 15वीं और 16वीं आयत में लिखा है, चुनाचे उसने अपने जिस्म के जरिया से दुश्मनी। अब ये लफ्ज जो दुश्मनी है, यानी वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाब्तों के तौर पर थे, माकूफ कर दी, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे। अब आप देखें कि दुश्मनी का जो जिद लफ्ज है वो सुलह है। अब लेकिन याद करें, अपने जिस्म से दुश्मनी, यानी वो जिस्म तार तार किया गया, कोड़ों की मार थी, लेकिन उस अपने जिस्म से दुश्मनी करके अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे। और अब ये नया इंसान जो है वो नया मखलूक है। यहां पर ये बात गौर तलब है, यहूदी और गैर अक़वाम में दुश्मनी थी। अब ये दुश्मनी हम ऐसे भी देख सकते हैं, खुदा और गुनहगार इंसान के दरमियान। लेकिन 13 से 15वीं आयत में यहूदी कौम गैर अक़वाम के दरमियान, पौलुस इस पैराग्राफ में बताते हैं कि ये दुश्मनी थी कि गैर अक़वाम को वो हकीर जानते थे, और दुनिया की तारीख बताती है। लेकिन मसीह खुदावंद ये मिशन लेकर आए कि यहूदी कौम और गैर अक़वाम में सुलह कराई, बल्कि उन सबको एक बदन में सुलह के वसीला से शामिल कर दिया। अब वो उसकी कलीसिया है, और ये सुलह खुदा के लोगों रिकंसिलिएशन है।
दोनों में एक इंसान पैदा कर दे। इब्तदाई कलीसिया को खुदा के मकासद को समझने में काफी दिक्कत महसूस हुई, क्योंकि ये आसान नहीं था यहूदियों को गैर अकवाम के साथ किस तरह से। लेकिन मैंने जैसे कहा 13वीं आयत से 15 आयत तक, मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों में एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। ये दीवार थी जैसे बर्लिन की दीवार थी, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी को जिसने जुदा कर दिया था। और आप जानते हैं हाल ही में ये बर्लिन की दीवार जब टूट गई, एक ही मुल्क, लेकिन एक मुल्क में जर्मनी बशिंदे ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी नहीं जा सकते थे। मैं मिसाल के तौर पर ये बात कह रहा हूं। और इसी तरह से ये दीवार थी, खुदा ने उस दीवार को तोड़ दिया और क्या कहा 15वीं आयत, चुनाचे उसने अपने जिस्म के जरिए से दुश्मनी यानी वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाब्तों के तौर पर थे माकूफ कर दी, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे। अब आज चाहे वो यहूदियों में नए मखलूक है या गैर कौमों में, अगर कोई मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है। ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना गुलाम, ना आजाद। 16वीं आयत, और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर और उसके सबब से दोनों में एक तन बनाकर खुदा से मिलाए। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नजदीक थे दोनों को सुलह की खुशखबरी दी, क्योंकि उसी के वसीला से हम दोनों की एक ही रूह में बाप के पास रसाई होती है। आज मैं आपको इस बड़ी खुशखबरी में ये जो इत्तेहाद था रसूलों ने, आप जानते हैं इमाल की किताब के 11वें बाब में जब पतरस के वसीला से कर्नेलियस के खानदान को खुदावंद ने बचा लिया और उसे कर्नेलियस को कहा कि शमाउन पतरस जो है वो शमाउन दमाग के यहाँ है। और जब पतरस यरूशलेम में आया तो मखतून उससे बहस करने लगे, तू ना मखतूनों के पास गया, उनके साथ खाना खाया। अब ये सारी दुश्मनी जो है ये क्या थी? इमाल की किताब का 21वां बाब और उसकी 28 से 23 आयत जब पढ़े तो पौलुस को हैकल में देखकर हलचल मची। ये वही आदमी है जो यूनानियों को इस हैकल में लाकर इस मकाम को इसने नापाक किया। इस तरह की यहूदियों में फीलिंग्स थी, इसलिए कहा जुदाई की वो दीवार ढाकर नया इंसान, खुदा और गुनहगार इंसान के दरमियान वो दुश्मनी जो थी वो खत्म कर दी। आखिरी बात जो तीसरा पॉइंट है, इत्तेहाद यानी कि यूनिफिकेशन। यहूदी और गैर अक़वाम मसीह में अब इस बात पर जोर दिया है, दोनों को एक कर लिया, एक नया इंसान, एक तन यानी कि एक बदन। अब बदन भी एक है 18वीं आयत में, एक रूह, वन स्पिरिट। और 19वीं आयत में एक कौम, वर्स 19, बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं बल्कि मुकद्दसों के हमवतन और खुदा के घराने के होगे और रसूलों और नबियों की नींव पर जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह है, यीशु में ताबीर किए गए हो, उसी में हर एक इमारत मिल मिलाकर खुदा में एक पाक मक़दस बनता जाता है और तुम भी उसमें बाहम तामीर किए जाते हो ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। खुदा के लोगों, आज इस यूनिफिकेशन में हम देखते हैं एक बदन, एक रूह, 19वीं आयत में एक कौम, वन नेशन।
उस वक्त सिर्फ बनी इसराइल थी एक कौम, लेकिन खुदा ने मत्ती की इंजील के 21वें बाब की 43वीं आयत में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी और उस कौम को जो उसके फल लाए दे दी जाएगी। अब बनी इसराइल वो कौम थी जिसने मसीह को रद्द किया। वो अपनों के पास आया, अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, अब जितनों में गैर अक़वाम के लोग और आज यहूदियों में भी जितने उसे कबूल कर रहे हैं, आज वो कौम खुदा की कलीसिया है। 19वीं आयत में मुकद्दसों के हमवतन, खुदा के घराने के लोग, वन फैमिली। इसलिए मैंने आपको जो 8 तस्वीरें शुरू में इंट्रोडक्शन में बताई कि इफिसियों के खत में कलीसिया की 8 तस्वीरें हैं। वन बॉडी, वन फैमिली। अब यहां पर एक मकदस, वन टेम्पल, उस वक्त यहूदियों का की जो हैकल थी वो मकदस था, लेकिन आज खुदा ने इस मकदस को जो है वो कोई इमारत नहीं बनाई, बल्कि मैं और आप उसका मकदस बन गए, ताकि रूह के वसीला से हम जो उसे बदन की जरूरत है मकदस की, तो वो हमारे बदनों में, हमारी जिंदगी में रहे। आज इन सारी बातों को बयान करते हुए मैं इस हवाले से खत्म करना चाहूंगा। इमाल 7 बाब की 48 से 50 आयत में लिखा है, आज खुदा कहां रहना चाहता है? आसमान मेरा तख्त और जमीन मेरे पांव तले की चौकी। तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे? मेरी आरामगाह कैसे होगी? बारी ताला हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। आसमान मेरा तख्त, जमीन मेरे पांव की। इसलिए पहला कुरिन्थियों 6 बाब की 19-20 आयत में कहा, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है। खुदा के लोगों, आज आओ हम खुशी मनाएं, शादमान हो, रिजॉइस करें। याद करो तुम जो गैर कौम वाले, क्या थी हैसियत हमारी गैर कौम के होते हुए। याद करो तुम जो जिस्म की रूह से गैर कौम वाले थे, अगले जमाना में मसीह से जुदा, इसराइल की सल्तनत से खारिज, वादा के अहदों से नावाकिफ, नाउमीद, दुनिया में खुदा से जुदा थी। लेकिन आज उस सुलह के सबब से उसने अपने जिस्म से दुश्मनी की, लेकिन इस सुलह से मुझे और आपको जो गैर कौम वाले थे, आज यहूदियों के लिए कोई फख्र ना रहा। मसीह खुदावंद ने ये सब कुछ किया, तो आज मैं ये कहूंगा वो सेपरेशन खत्म कर दी, रिकंसिलिएशन यानी कि सुलह, और फिर यूनिफिकेशन यानी वो इत्तेहाद। आओ हम खुदा की शुक्रगुजारी करें, उसके नाम की जय जय करें, महिमा गाएं। कितने भाग्यवान हो, कितने आप और मैं खुश नसीब लोग हैं जिन्हें ऐसा खुदा मिल गया। हालेलुया। God bless you all. Over to Pastor Asad.